Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start 7 of grade science. All of you open your reading textbook page number 18, unit number 2, transport of nutrients. So students, in this chapter we will learn that how nutrients are transported in human body and which system is responsible for the transportation of these nutrients. Think back. Which system transports oxygen to all parts of the body? So students, human body के अंदर वो कौन सा सिस्टम है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. Food and oxygen are the basic need of every cell in the human body. Food and oxygen and other useful material must be delivered to each cell and all other parts of the body to carry out their function. For this purpose, Allah subhanahu wa ta'ala has developed transport system in both plants and animals. So students, human body की जो basic need है उसमें क्या है? Food and oxygen. ये human body की basic needs हैं, इनके बगैर human body का survival possible नहीं है. So human body में food और oxygen जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम. The transportation system in human is called circulatory system. So students, जो human body के अंदर transportation system है जो food और oxygen को और बाकी nutrients को transport करता है उस system को हम क्या कहते हैं? Circulatory system कहते हैं. Other name of the transport system are vascular system. और transport system का जो second name है या हम transport system को vascular system भी कह सकते हैं. अब ये जो transport system है ये कुछ functions को carry out करता है. Just like ये क्या करता है? Carries oxygen and nutrients to the cell. सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करता है. वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से किडनी तक लेके जाता है ताकि उस वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज कर सकें. ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड अदर केमिकल फ्रॉम सेल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टू द किडनी फॉर डिस्पोजल. सो स्टूडेंट्स, अब ये क्या, इसका जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से किडनी तक लेकर जाएगा ताकि उनको डिस्पोज कर सकें. ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड अदर केमिकल फ्रॉम सेल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसके अलावा हार्मोन और दूसरे केमिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा. कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा. द सर्कुलेटरी सिस्टम like other system of the body is made up of different organ which perform specific function. So students, body के बाकी जो organs है उनकी तरह हमारा जो circulatory system है वो भी different functions को perform करता है. Major component जो circulatory system को बनाते हैं वो कौन कौन से? Heart, blood and blood vessels. So first of all we will discuss about that what is a heart. Here you can see the internal structure of heart. The heart is the major organ in the circulatory system whose job is to pump blood at regular interval, causing it to move throughout the body. So students, in this picture you can see that it is the internal structure of human heart. It is a cone shape. You can see that it look like a cone and it is a muscular organ about the size of a fist. और इसका जो size है वो तकरीबन हमारी हथेली के जितना है. ये स्पेशल मसल से बना होता है जिन्हें हम कौन से मसल्स कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं. इसके अलावा हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स है. आप देख सकते हैं इट इज अ राइट एट्रियम, इट इज अ लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज अ राइट वेंट्रिकल and it is a left ventricle. You can see that the right atrium and left atrium are smaller in size and right ventricle and left ventricle are larger in size. So right atrium and left atrium जो है ये हार्ट के अपर चैम्बर्स हैं जबकि right ventricle और left ventricle क्या है? लोअर चैम्बर्स हैं. जो राइट साइड होता है हार्ट का वो डिलीवर करेगा ब्लड को लंग्स की तरफ जबकि जो लेफ्ट साइड होगा वो ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिलीवर करेगा. राइट साइडेड जो चैम्बर होते हैं उनको लेफ्ट साइड से सेपरेट किया जाता है एक थिन वॉल से और उस वॉल को हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं. ये क्या करती है? ब्लड को मिक्स होने से रोकती है. वॉल्स कनेक्ट द एट्रिया विद द वेंट्रिकल एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग पंपिंग. आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल है और उस वॉल का क्या नाम है? ट्राइकैप्सिड वॉल्स. अब ये वॉल्स क्या करते हैं? बैक फ्लो जो ब्लड का होता है उसको प्रिवेंट करते हैं जबकि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व है उसको हम बाइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं.
In this diagram, you can clearly see the tricapsid valve and bicapsid valve. So student, tricapsid valves are present between the right atrium and right ventricle, and bicapsid valves are present between the left atrium and left ventricle. And we will also discuss the term septum. You can clearly see that it is a septum, thin wall, and it prevent the mixing of blood. ये blood को mix होने से prevent करती है, हार्ट के जो दोनों साइड के चैम्बर्स हैं उनके दरमियान जो blood है उन वो आपस में मिक्स ना हो, इस वजह से सेप्टम जो है वो एक वॉल यहाँ पर है जो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। Our heart produce lub-dub sound if we hear it carefully using a stethoscope. So students, आपने कभी शायद गौर किया हो कि आपकी जो हार्ट की साउंड है वो हमेशा लब-डब साउंड होती है। अगर आप स्टेथोस्कोप को यूज करें, स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम अपने हार्ट की साउंड को सुन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेथोस्कोप की मदद से अपने हार्ट की आवाज़ को सुने तो वो आपको लब-डब सुनाई देगी। अब जो वर्ड लब है ये साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब अपर एट्रिया हार्ट के ब्लड को एम्पटी करेंगे वेंट्रिकल्स में, जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा तो लब साउंड प्रोड्यूस होगी और उसके जो वॉल्स हैं वो फौरी तौर पर बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड का बैक फ्लो, वाटर का बैक फ्लो ना हो सके। लेकिन जो डब साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगी? जब ब्लड वेसल्स फ्लेप करेंगी और ब्लड को रिसीव करने के बाद वेंट्रिकल से जब ब्लड को रिसीव करेंगी तो वो फ्लेप करेंगे। अब ब्लड इंटर भी होगा हार्ट में और लीव भी करेगा ब्लड वेसल्स के जरिए। हार्ट जो है, हार्ट के 2 फंक्शंस होते हैं। इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स। पहला फंक्शन क्या है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये ब्लड को कलेक्ट करेगा और उसके बाद उस ब्लड को लंग्स में पंप कर देगा। और इसका सेकंड फंक्शन क्या है? इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सेकंड फंक्शन में ये क्या करेगा? ये लंग्स से ब्लड को कलेक्ट करेगा और उसके बाद तमाम बॉडी पार्ट्स को पंप करेगा। ब्लड इज अ कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम that flow throughout our body. It circulates constantly carrying nutrients, oxygen and waste product. In adult body contain about 5 liter of blood. It is a living tissue composed of 3 different type of cell and plasma. So students, blood क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है और ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। ये कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता है और कौन कौन सी चीज़ें कैरी करता है? न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और वेस्ट प्रोडक्ट को। जो एडल्ट है, एक हेल्दी पर्सन है, उसके अंदर तकरीबन 5 लीटर ब्लड हो सकता है। ब्लड जो है वो एक लिविंग टिश्यू है जो मजीद 3 तरह के डिफरेंट टाइप से बना होता है, सेल और प्लाज्मा के। अब प्लाज्मा, व्हाट इज अ प्लाज्मा? It is the liquid part of blood made up of water, salt, protein, glucose and other nutrients. So students, प्लाज्मा जो है ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है और ये वाटर, साल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज और कुछ न्यूट्रिएंट्स से बना होता है। एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस डायग्राम यू कैन सी इट इज द डायग्राम ऑफ रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट। दे कंटेन अ रेड पिगमेंट। अब ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इट्स मीन ये क्या कंटेन करते हैं? रेड पिगमेंट को कंटेन करते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। विच कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? ये बॉडी के तमाम पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट्स, these cell make our immune system that help us to fight against germs. So students, ल्यूकोसाइट या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। जब हम किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल हमारी हेल्प करते हैं या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हम उस बीमारी के साथ कम्बैट कर सकें। इसके अलावा बाहर से जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होने की कोशिश करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल उनके ऊपर अटैक करते हैं। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ एनी वाउंड बाय क्लॉटिंग द ब्लड। सो स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है? जब भी हम जख्मी होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी कट लग जाता है तो हमारी बॉडी के ऊपर ब्लड जो है वो फौरन से क्लॉट हो जाता है। अब ये क्लॉटिंग किस वजह से होती है? प्लेटलेट्स की वजह से होती है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा और उसके बाद हमारी जान को नुकसान हो सकता है या फिर खतरा हो सकता है। ब्लड वेसल,
सो स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसमें जो क्या करता है, ब्लड को बॉडी तक लेकर जाता है और वहाँ से वापस दिल तक लेकर जाता है। और उस सिस्टम को हम वो जो वेसल्स हैं या वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहेंगे। अब जो ब्लड वेसल्स हैं उनका फंक्शन ही क्या है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर मजीद 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकंड इज कैपिलरी एंड द थर्ड वन इज वेन। सो आर्टरी से हमारे पास मजीद क्या है, आर्ट्रियोल्स हैं, और वेन से वेन्यूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आर्टरी। सो स्टूडेंट, व्हाट इज अ आर्टरी? आर्टरीज क्या है, वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन उस ब्लड में ऑक्सीजन होती है और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स को हार्ट से बॉडी के तमाम जिस्म तक लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाएंगे, और जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन रिच होगा, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज मजीद स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड्स होंगी जिसे हम आर्ट्रियोल्स कहेंगे, और ये क्या करेंगी, दे कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज की जो स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टरीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आर्टरीज आर स्ट्रॉन्गर एंड फ्लेक्सिबल विथ थिकर वॉल। आर्टरीज मजबूत होती हैं, फ्लेक्सिबल में लचकदार होती हैं, और इनकी जो वॉल्स हैं वो मोटी होती हैं, थिक होती हैं। इसके अलावा एक स्मॉल ल्यूमन प्रेजेंट होता है, ल्यूमन। इस ल्यूमन का ल्यूमन होता है और ये गिविंग देम अ राउंड अपीयरेंस इन क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में ये इसको राउंड नहीं गोल शक्ल देगा। ल्यूमन इज अ हॉलो पैसेज वे। ल्यूमन एक हॉलो पैसेज वे है इन ईच वेसल, हर वेसल के अंदर, थ्रू विच द ब्लड फ्लो, जहाँ से ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ब्लड इन आर्टरीज फ्लोज विद हायर प्रेशर देन इन वेन्स। लेकिन जो ब्लड का फ्लो होगा वो आर्टरीज में हायर प्रेशर में होगा एज कंपेयर टू वेन। Second one is vein. So what is a vein? Vein is also a type of blood vessel. It carry blood which is poor in oxygen and nutrients towards the heart after collecting it from different parts of the body. So student, arteries के बारे में मैंने आपको बताया कि ये blood को heart से लेगी और body के तमाम हिस्सों तक पहुंचाएगी। लेकिन vein का function क्या है कि ये ब्लड को बॉडी के तमाम पार्ट से लेगी और उसको दिल तक पहुंचाएगी। लेकिन ये बॉडी से जो भी ब्लड लेगी वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, मीन उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। वेन इज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉलर venules carrying deoxygenated blood joins together. Veins share the same structural features. So student, जो स्ट्रक्चर है वेन्स की वो और आर्टरी की स्ट्रक्चर्स मिलती जुलती हैं, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस किसका होगा कि जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल थिक होंगी, जबकि इसकी जो होंगी वो थिनर होंगी। वेन हैव थिनर वॉल्स एंड अ लार्जर ल्यूमन। आर्टरीज में मैंने आपको बताया कि इसका जो ल्यूमन है वो स्मॉल साइज का होगा, जबकि वेन्स में जो ल्यूमन है वो लार्ज साइज का होगा। इसके अलावा कुछ वेजल जस्ट लाइक हमारी जो लेग्स की जो वेन है उनमें लेग्स की वेन में वॉल्व्स पाई जाते हैं। अब उन वॉल्व्स का क्या काम है कि वो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं। द प्रेशर विद विच ब्लड फ्लो इन वेन्स इन क्वाइट लो। स्टूडेंट्स, आर्टरीज का मैंने आपको बताया था कि उसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर पे फ्लो होगा, जबकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो है वो उसका प्रेशर क्या होगा, लो होगा। थर्ड वन इज कैपिलरीज. So student, that what is a capillaries? Capillaries are tiny, thin wall vessel made up of only single layer of the cell. Capillaries क्या है? Tiny, छोटी thin wall vessels होती हैं जो कि सेल की सिर्फ सिंगल लेयर से बनी होती हैं। ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज एनेबल देम टू एक्सचेंज गैसेस। अब जो कैपिलरीज है इनका फंक्शन क्या होता है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड और सेल्स के दरमियान। कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कैपिलरीज किसकी ट्रांसपोर्टेशन करती हैं? तो दोनों ब्लड की, मीन वो ब्लड जो ऑक्सीजन रिच होगा और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, मीन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट करेंगी। Students, I have explained half unit number 2. Now it's your home task. You have to make 5 MCQs from each topic of this unit. Jazakallah fi amanillah.